یہ ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ جو بدھسٹ کلچر ہے یہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ اتنے کے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بھی ان کے ریمینز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں بدھسٹ کلچر کو فالو کرتے تھے. ایز اے بدھسٹ بدھزم کو یہاں آ کے کیا نام ہے ان کو ایک عبادت گاہ بھی مل سکتے ہیں اور وہ لوگ یہاں آ کے اپنا عبادت بھی پورا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ایزیلی آ کے یہاں انٹرٹین. ہم یہاں پہ آج کرگا بدھا میں آئے ہوئے ہیں اور کرگا بدھا کو مقامی زبان میں ہم یکنی کہتے ہیں اور اس کی بڑی اپنی ایک منفرد تاریخ بھی ہے اور بظاہر جب آپ دور سے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی منفرد اور بے مثال قسم کی چیز ہے, لیکن جب قریب سے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ بہت بے مثال اور منفرد سی چیز ہے. باسیت ایک ڈسیبل پرسن میرے کچھ ایسے آثار بن نہیں رہے تھے, لیکن ابھی جو ہے نا کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے یہاں پہ کچھ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے ہیں تو یہاں پہ پہنچ آئے ہیں ہم. یہ اصل میں بنی ہوئی ہے 7ویں صدی کی, آج سے 1400 سال پہلے یعنی اسلام سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. یہاں اس ایریا میں یہ جو پہاڑ پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو, یہاں پر مونسٹری ایریا تھا. مونسٹری یعنی اس جگہ کو کہتے ہیں یہاں پر یہ جو پنڈت لوگ ہوتے ہیں مونک وہ رہتے اور اپنی ایک پاپولیشن بنا کر وہاں پر اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ بناتے اور وہاں پر رہتے. ہم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں جو ہے یہ ٹریڈیشنل جو بدھا کی جو یہ ہے پتھر کے اوپر انہوں نے کارونگ کی ہوئی ہے, تو یہ اولڈ کلچر ہے جو انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے یہاں پہ. تو بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ ٹیکسلا سے ہے, تو اس کی بہت ساری ریمینز جو ہیں بدھزم کی ٹیکسلا میں بھی ہیں. تو یہ ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ جو بدھسٹ کلچر ہے یہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ اتنے کے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بھی ان کے ریمینز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں بدھسٹ کلچر کو فالو کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اسلام آیا اور یہاں پہ الحمدللہ سارے لوگ مسلمان ہیں. تو یہ دیکھ کر اچھا لگا اور یہ ایک تاریخی جگہ ہے اس حوالے سے بھی. تو اس کو میں تو یہ کہوں گی کہ جو یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ٹورزم ہے ان جگہوں کو تھوڑا سا اور ڈیولپ کریں, ان کی ایکسیس جو ہے وہ ایزی بنائیں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں کے جو اولڈ آپ کے ایسے اسپاٹس ہیں ان کے ایکسیس ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کتنا کلچر ہے, ہیریٹیج کے حساب سے یہ رچ ہے. تو یہاں پہ جتنی اویئرنیس نہیں ہے, مطلب ہمیں نہیں پتہ تھا, ہم پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہم یہاں کے بڑے امپریس ہوئے اور اس کے انٹرنس پہ ایسی تھوڑی سی گائیڈ لائنز موجود ہوں, کوئی ایسی ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی جائیں تو اس سے اور زیادہ جو ہے نا آپ کے کلچر کے بارے میں یا آپ کا جو اولڈ یہاں پہ ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہوں. جی یہ کرگا بدھا جو ہے یہاں اس جگہ پہ میں یہاں آ کے مجھے ایک تو یہاں لوکیشن کا ٹریس کرنا کافی مشکل ہو گیا. میں یہاں پر آئی تھی تو میں لوگوں سے پوچھ کے یہاں آئی تو مجھے ایک دفعہ یہ مسئلہ ہوا کہ یہاں پر راستہ کہاں سے ہے, تو یہاں پوچھتے پوچھتے میں یہاں تک پہنچی ہے. تو یہاں تھوڑا سا نیچے ریفریشمنٹ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا, ادھر آگے جا کے بچوں کے ساتھ رہنا تھوڑا سا رہائشی کیا نام ہے ہمیں اس کا لوکیشن چاہیے تھا وہ بھی نہیں تھا. تو میں گورنمنٹ یہاں کیا نام ہے صوبائی گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں بھی ہمیں بچوں کے ساتھ ایزیلی کمفرٹ طریقے سے رہنے کا ایک جگہ پرووائڈ کرے تو تاکہ ہم دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایزی فیل ہو جائے. اچھا یہ بھائی پہلے بہت زیادہ امیر کبیر سید علی احمدانی یہاں تشریف لانے سے پہلے یہاں اس علاقے میں پورا بدھزم تھا. تو یہاں امیر کبیر سید علی احمدانی نے یہاں لوگوں کو کیا اسلام کا کیا نام ہے وہ کر کے کیا انفارمیشن دے کے لوگ ابھی بعد میں اسلام ہوا ہے. تو یہاں کیا نام ہے ایز اے بدھسٹ کیا نام ہے بدھزم کو یہاں آ کے کیا نام ہے ان کو ایک عبادت گاہ بھی مل سکتے ہیں اور وہ لوگ یہاں آ کے اپنا عبادت بھی پورا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتے ہیں, بچوں کے ساتھ ایزیلی آ کے یہاں انٹرٹین بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں گلگت بلتستان بہت ہی کیا نام پرسکون پرامن ماحول ہے. یہاں پر سب لوگ دوسرے لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر بہت اچھے ماحول آپ لوگوں کو پرووائڈ ہوں گے, ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن ملے گا اور جہاں کہیں بھی رہے آپ لوگوں کو پرامن طریقے سے بالکل کیا اپنے گھر جیسا ماحول آپ لوگوں کو مہیا ہوں گے. اس کے تو تقریباً
हमारे जो बड़े अभी कह रहे हैं वो कह रहे तकरीबन इसके ऊपर ना तकरीबन 100-150 खंडरात अभी भी मौजूद है। इसके ऊपर खुदाई भी करके पिछले दिनों एक बंदे ने बहुत बड़ी मिकदार में कोई कीमती असासे भी निकाले। निकालने के बाद अभी वो क्या कहते हैं वो आसार कदीमा वालों ने अभी बंद किया। पीछे पुलिस बैठी है, पुलिस वाला ऊपर जाना बंद किया है और टूरिस्ट पुलिस भी इधर मौजूद है। उसके बाद बहुत सारे लोग आते, खुसूसन गर्मियों में या छुट्टियों के दिन बहुत सारे लोग आते इसकी इधर आके घूमते फिरते और इंजॉय करके चले जाते हैं। जो अभी ताज़ा इन दिनों में या आपके यहाँ पे मौजूदगी में कुल कितने बुद्ध मज़हब के लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो क्या करते हैं? पिछले दिनों तकरीबन 35 एक ग्रुप आए थे, उसके बाद 56 एक ग्रुप आए थे। 56 के बाद कुल टोटल इधर हमारी मौजूदगी में 86 बुतमिस्त इधर आए थे, जिसमें पुलिस वालों ने खुद लाया था और हुकूमत ने खुद इधर लाया था। इधर आके उन्होंने ऊपर जाके पूजा करके फूल शूल उनको उसकी तरफ फेंक के उसके बाद बहुत खुशी से इधर आके वापस चले गए। ये तकरीबन 500-600 साल पुरानी है। ये मुख्तलिफ लोग इधर आके इसको देखते, पूजा भी करते, लोकल लोग भी आते इधर आके, ये बहुत सारे लोग आते इसको देखते, आके देख के इंजॉय भी करते। कोई बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे आज करगा बुद्धा में आए हुए हैं और करगा बुद्धा को मकामी ज़बान में हम यक्षणी कहते हैं और इसकी बड़ी अपनी एक मुनफरिद तारीख़ भी है। और बज़ाहिर जब आप दूर से इसको देखते हैं तो आपको महसूस नहीं होता है कि ये कोई मुनफरिद और बेमिसाल किस्म की चीज़ है, लेकिन जब करीब से आप इसको देखते हैं तो आपको वाकई लगता है कि ये बहुत बेमिसाल और मुनफरिद सी चीज़ है। और पता नहीं कितने फुट बुलंदी पर उस दौर में इसको बनाया गया है और इसकी यहाँ पे बाकायदा तौर पे इसकी यहाँ पे पूजा की जाती थी, इसकी इबादत की जाती थी। और उसी सिलसिले में आज भी कोरिया से, जापान से, दुनिया भर से जहाँ से भी बुद्ध मज़हब के पैरोकार और उसको मानने वाले जब गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं तो इस इलाके में ज़रूर आते हैं। और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जो बुद्ध मज़हब के पैरोकार हैं उनका इस इलाके की तरफ जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे आते हैं और अपनी जो मजहबी इबादत हैं वो भी यहाँ पे करके चले जाते हैं और बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पोटेंशल है टूरिज़म का, उसमें एक पोटेंशल ये रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से भी है, क्योंकि इन इलाकों में बुद्ध मज़हब के या हिंदुओं से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको अगर प्रिजर्व करें और इनको टूरिज़म के लिए खोल दें तो ज़ाहिर बात है जो टूरिज़म से कमाने का और टूरिज़म से एक सस्टेनेबिलिटी का जो ख्याल है हुकूमत का वो पूरा हो सकता है। सर, आसार कदीमा के हवाले से बड़े मौक़े हैं, बड़ी चीज़ें हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत अहम चीज़ें जैसे कि दारुल में फुकुश यूनिवर्सिटी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह के और भी हमारे जो आसार कदीमा के जो मकामात हैं उनको महफूज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर हम इन आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ की हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत छोटे छोटे मकामात हैं जिनको हुकूमत ने बराए नाम तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया हुआ है या उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली हुई है, लेकिन हकीकी मानों में उनका तहफ़्फ़ुज़ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके से दारेल की वो जो फुकुश यूनिवर्सिटी है उससे लेके यहाँ करगा यक्षणी से लेके जहाँ जहाँ से इस वक्त दियामर बादशाह डैम से जो कार्विंग्स हमने देखे हैं निकले हैं और दुनिया के मकामात है जहाँ से इस तरह के पुराने आसार निकलते हैं, तो इन सब को तहफ़्फ़ुज़ दे के इनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी से पाबंदी लगानी चाहिए जिससे इनकी जो हैयत है वो तब्दील हो सके या वो ख़राब हो सके। अच्छा, मेरा नाम मलिक तारिक महमूद एडवोकेट है। हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की विज़िट करने की, सैर करने की हमारी काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी, लेकिन बासियत एक डिसेबल पर्सन मेरे कुछ ऐसे आसार बन नहीं रहे थे। लेकिन अभी जो है ना कुछ खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ पे कुछ बन गए हैं, अल्लाह ताला ने वसाइल बनाए हैं, तो यहाँ पे पहुँच आए हैं। हम लोग कल पहुँचे हैं। पहले हम इस्लामाबाद से चले हैं, वहाँ से हम जो है खगान नारान गए थे और बट्टाकुंडी गए थे पहले। तो बट्टाकुंडी भी बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ से हमारा गिलगित आने का इरादा था, लेकिन वहाँ से बट्टाकुंडी से आके जो रोड थी वो ग्लेशियर की वजह से अभी खुली नहीं है, ब्लॉक है। तो हमें फिर जो है ना वहाँ से वापस आना पड़ा, फिर मानसेरा से ट्रांजिट लेके तो फिर जो है ना हम आगे ये गिलगित रोड पे आए हैं। तो ये आगे से कुछ रोड ख़राब है जहाँ पे वो स्लाइड वगैरह है,
वहाँ पे थोड़ी सी मसला हुआ है और रास्ते में गाड़ी भी हमारी थोड़ी सी हीटअप हो गई थी, तो हम वहाँ से जो है ना बिशाम में हमने स्टे किया है। तो वहाँ से बिशाम से हमें क्योंकि पता चला था कि बिशाम से आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे राइट स्टे के लिए आपको अच्छी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा है। तो फिर हम बिशाम में स्टे करके आज सुबह जो है ना 8 बजे वहाँ से निकले। रास्ते में जो है गाड़ी भी जो है ना वो शांतल इलाका है या पता नहीं कहाँ, वहाँ के करीब जो गाड़ी हीटअप हो गई थी। शतियाल हुआ। फिर वहाँ से 10-15 किलोमीटर निकले हैं तो वापस आए हैं, गाड़ी हीटअप हो गई थी। तो वहाँ से अल्लाह की मैकेनिक मिल गए हैं, लोग भी अच्छे, उन्होंने तावन की है, तो उन्होंने काबिल कर दी थी इस काबिल की जहाँ तक हम गिलगित तक पहुँच आए हैं। तो अभी मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी की हुई है, तो बाकी मकामी लोग यहाँ से गाड़ी पे हम आए हुए हैं। देखते हैं अब इंशाल्लाह 4-5 दिन रहने का इरादा है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ और बहुत खुश इखलाक हैं, हमें तो बहुत पसंद आ रहा है। तो इंशाल्लाह अच्छी यादें लेके जाएंगे यहाँ से, उम्मीद है। तो बाकी आप पाकिस्तान के लोगों से, दुनिया के लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ, देखें, लोगों का एंजॉय करें, नज़ारे एंजॉय करें। और जगह बहुत पुरसुकून है, मौसम बहुत अच्छा है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं और प्लेसेस जो है विज़िट करने की बहुत सारी हैं। अभी तो बहुत सारी ऐसी जो हमें पता भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जो यहाँ पे मुकामी लोगों से भी गाइडेंस लेंगे और कुछ हमारे साथ गाइड भी हैं, वो गाइड करेंगे, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मौका मिला तो फिर आपसे बात होगी। शुक्रिया उस्ताद। अच्छा, सबसे पहले तो ये इसलिए मुनफरिद है कि कदीम ज़माने से, एंशियंट टाइम्स फ्राम, यहाँ पर ये असल में बनी हुई है 7वीं सदी की, आज से 1400 साल पहले, यानी इस्लाम से पहले की बनी हुई है। यहाँ इस एरिया में ये जो पहाड़ पीछे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर मोनेस्ट्री एरिया था। मोनेस्ट्री यानी उस जगह को कहते हैं यहाँ पर ये जो पंडित लोग होते हैं, मोंक, वो रहते और अपनी एक पॉपुलेशन बनाकर वहाँ पर अपनी इबादत के लिए एक जगह बनाते और वहाँ पर रहते। तो यहाँ पर 3री सदी से 7वीं सदी तक तकरीबन वो रहे यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के जो आखिरी सदी है, 7वीं सदी यानी, उसमें इस जश्न को यहाँ पर बनाया है। और उसके बाद जब इस्लाम आया तो लोग ज़्यादातर जो बुद्धिज़्म नेशन के जो लोग थे वो यहाँ से मुसलमान हो गए थे और कुछ जो बकाया रह गए थे वो यहाँ से माइग्रेट हो गए दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, जैसा कि कोरिया, चाइना, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज़ की तरफ माइग्रेट हो गए। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे आबा व अजदाद के आने से पहले डोगरा राज के थे, उन्होंने भी तकरीबन काफ़ी साल हुकूमत की। उसके बाद फिर यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत आई प्रॉपर। तो इसलिए ये जो बुद्धा है, यशनी कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, ये यूनिक इसलिए है कि ये 7वीं सदी की बनी हुई है। बुद्धिज़्म नेशन इस्लाम से पहले कबल बनी हुई है, जिसकी वजह से ये यूनिक है। और इसको देखने के लिए मुल्क भर से, बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। हर साल एक डेलीगेशन भी आता है मॉन्क्स का, यहाँ पर अपनी मेडिटेशन इबादत करते हुए यहाँ से चले जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि हमारे जो मज़हब है, जो बुद्धिज़्म नेशन के जो लोग हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमारे जो मज़हब है उसकी निशानियाँ अभी भी गिलगित में मौजूद है। जी।